प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश हो रहा था। आगे बढ़ता जाता था और पैरों के निशान देखता जाता था। उससे बने उसके निशान देखकर, उसके डिज़ाइन देखकर और खुश होता जाता था। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। वो क्रोध में आया और उसने लहर से कहा, ऐ लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र समझता था, पर तूने ये क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी मित्र हो तुम, कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। मित्र, तुमको वो पकड़ न लें, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है कि कई बार हम सामने वालों की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उन्हें गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अतः मन में वैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। Years ago in India, I was sitting in the courtyard of the little temple in the Himalayan foothills. 30 or 40 of us were there around my Guru, Maharaj Ji. This old man, wrapped in a plaid blanket, was sitting on a plank bed, and for a brief, uncommon interval, everyone had fallen silent. It was a meditative quiet, like an open field on a windless day or a deep, clear lake without a ripple. I felt waves of love radiating toward me, washing over me like a gentle surf on a tropical shore, immersing me, rocking me, caressing my soul, infinitely accepting and open. I was nearly overcome, on the verge of tears, so grateful and so full of joy, it was hard to believe it was happening. I opened my eyes and looked around, and I could feel that everyone else around me was experiencing the same thing. I looked over at my Guru. He was just sitting there, looking around, not doing anything. It was just his being, shining like the sun, equally on everyone. It wasn't directed at anyone in particular. For him, it was nothing special, just his own nature. This love is like sunshine, a natural force, a completion of what is, a bliss that permeates every particle of existence. In Sanskrit, it's called Satchidanand, truth, consciousness, bliss, the bliss of consciousness of existence. When Maharaj Ji was near me, I was bathed in that love. When Maharaj Ji was near me, I was bathed in that love. One of the other Westerners with Maharaj Ji, Larry Brilliant, said, "How do I explain who Maharaj Ji was and how he did what he did? I don't have any explanation. Maybe it was his love of God. I can't explain who he was. I can almost begin to understand how he loved everybody. I mean, that was his job. He was a saint. Saints are supposed to love everybody. But that's not what always staggered me. Not that he loved everybody.
but that when I was sitting in front of him, I loved everybody. That was the hardest thing for me to understand, how he could so totally transform the spirit of people who were with him and bring out not just the best in us, but something that wasn't even in us, that we didn't know. I don't think any of us were ever as good or as pure, as loving in our whole lives as we were when we were sitting in front of him. बरसों पहले मैं भारत में हिमालय की तलहटी में एक छोटे मंदिर के आंगन में बैठा था। हम लोग महाराज जी के पास बैठे हुए थे। ये बूढ़ा व्यक्ति कंबल लपेटे हुए तख्त पर बैठा था और कुछ देर के लिए असामान्य अंतराल के लिए सभी चुप हो गए थे। ये एक ध्यानपूर्ण शांति थी, जैसे हवा रहित दिन में एक खुला मैदान या एक लहर के बिना एक गहरी स्पष्ट झील हो। मैंने महसूस किया कि प्रेम की लहरें मेरी ओर फैल रही हैं, मुझे डुबो रही हैं, मुझे हिला रही हैं, मेरी आत्मा को सहला रही हैं, असीम रूप से स्वीकार कर रही हैं। मैं लगभग आंसुओं के कगार पर पहुंच गया था, इतना आभारी और इतना आनंद से भरा हुआ कि ये विश्वास करना कठिन था कि ये सब हो रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा और मैं महसूस कर सकता था कि मेरे आसपास के सभी लोग भी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। मैंने अपनी गुरु की ओर देखा, वे वहीं बैठे थे और इधर उधर देख रहे थे। वे सूरज की तरह सभी पर समान रूप से चमक रहे थे। ये विशेष रूप से किसी पर निर्देशित नहीं था, उनके लिए ये कुछ खास नहीं था, ये बस उनका स्वभाव था। ये प्रेम धूप की तरह है, एक प्राकृतिक शक्ति है, उसकी पूर्णता का आनंद अस्तित्व के हर कण में व्याप्त है। संस्कृत में इसे सच्चिदानंद कहते हैं। महाराज जी जब मेरे पास होते थे तो मैं उस प्रेम में नहाया करता था। महाराज जी के साथ अन्य पश्चिमी लोगों में से एक लैरी ब्रिलियंट ने कहा है, मैं कैसे समझाऊं कि महाराज जी कौन थे और उन्होंने जो किया वो कैसे किया। मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, मैं समझा नहीं सकता कि वो कौन थे। मैं लगभग समझना शुरू कर सकता हूँ कि वो सभी से कैसे प्यार करते थे। मेरा मतलब है वो उनका काम था, वो एक संत थे और संतों को सभी से प्यार करना चाहिए। लेकिन ये बात कि वो हर किसी से प्यार करते थे मुझे चौंकाती नहीं थी, बल्कि ये चौंकाता था कि जब मैं उनके सामने बैठता था तो मैं सभी से प्यार करता था। मेरे लिए ये समझना सबसे कठिन काम था कि कैसे वो उन लोगों की भावना को पूरी तरह से बदल सकते हैं जो उनके साथ हैं, जो उनके साथ थे, और न केवल उनको सबसे अच्छा बना देते हैं, बहुत अच्छा इंसान बना देते हैं, बल्कि कुछ ऐसा अच्छा करते हैं उनके साथ, उनमें ऐसी अच्छाई भर देते हैं जो उनमें कभी थी ही नहीं और जिसे वो कभी जानते ही नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी अपने पूरे जीवन में कभी भी उतना अच्छा या पवित्र या उतना प्यारा था जितना हम उनके पास बैठकर हो जाते थे। जब किसी ने महाराज जी से पूछा कि ध्यान कैसे करें तो उन्होंने कहा, जिस तरह से ईसा मसीह ने ध्यान किया था। ईसा मसीह ने खुद को प्यार में मिटा दिया था। ये प्रसंग मैंने लिया है रामदास जी की पुस्तक बी लव नाउ में से। प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो।